Aam Aadmi Party MLA from Chandni Chowk, Alka Lamba, alleged that she was beaten up by supporters of a BJP MLA. She said that she had stones hurled at her. She also had a bandage across her head as proof. Well, now CCTV footage has emerged, which raises very serious questions about Alka's theory, because in this footage, she's actually seen barging into a sweet shop along with her supporters and vandalizing that shop. Take a look at these pictures. AAP MLA Alka Lamba caught on tape, pushing a cop and vandalizing a sweet shop along with her supporters. The AAP MLA then headed straight to the counter, toppling the billing machine. This CCTV footage clearly counters Lamba's claims. But despite the glaring evidence of hooliganism, the AAP MLA defended her act. हर दुकान ने क्या आपसे हमले का वीडियो दिया है, और बिल्कुल मैं आपसे कहूंगी ये जो आप दिखा रहे हैं, क्या ये हमले से पहले का वीडियो है या हमले के बाद का? मेरा कहना ये बाद का है. With the CCTV footage punching holes in Alka Lamba's claims, a united opposition pounced on the opportunity. एक तरह की पूरी दादागिरी, पूरी गुंडागर्दी दिल्ली में वो फैलाने का प्रयास कर रहे हैं. अगर ये नहीं होता तो शायद उनका असली चेहरा, बेनकाब चेहरा जनता के सामने नहीं आता. Facing the opposition heat, AAP closed ranks behind its MLA. जो लोग ये वैंडलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, वो शायद अगर उस मौके पर होते और उनके ऊपर अगर कोई पत्थर पड़ता और वहाँ का जो माहौल था जहाँ पे पुलिस बुलाने के बावजूद पुलिस नहीं आती, तो एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया होती. But the political slugfest got uglier. BJP MLA Om Prakash Sharma, who is believed to be the owner of the shops targeted by Lamba, threatened AAP workers. वो भी गुंडा या गुंडी केजरीवाल जी के यहाँ आएंगे तो जो यहाँ पे इस बदनीयत से आएंगे वो सीधे साधे नहीं जाएंगे, उनको स्ट्रेचर पे जाना होगा. After a BJP MLA dubbed Alka Lamba as Kejriwal's goon, the AAP MLA filed a complaint against Sharma for abusive language. She has also mentioned about the Hanuman Mandir incident in her complaint where she was attacked. She further alleged that the shop was owned by OP Sharma. The fight between AAP and BJP spilled onto the president's doorstep. इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया किसी भी सरकार के मुखिया का संभवतः नहीं रहा है. इन सब बातों का विस्तार से संज्ञान हमने राष्ट्रपति जी के सामने अपने सभी साथियों के साथ किया है. With CCTV footage hinting that AAP MLA may have struck first, can Alka Lamba manage to wriggle out of this controversy and justify her act? Bureau Report for India Today. Alka Lamba claims she was attacked by supporters of a BJP leader. CCTV footage instead shows Alka Lamba and her supporters running into a sweet shop and vandalizing it. Joining us on this broadcast is the Aam Aadmi Party MLA from Chandni Chowk, Alka Lamba. Alka, welcome. You made a claim where you said that you were attacked by supporters of a BJP MLA. I want to run CCTV footage taken from inside that sweet shop. And the first thing that this footage shows is that you come in and you start moving the cash counter around. If there is aggression, it is actually seen from your side instead of being seen from whoever was inside that shop at that time, Alka. राहुल, ये 9 अगस्त क्रांति दिवस के दिन का ये हादसा है. हम लोगों ने एक अभियान चलाया क्योंकि मैंने मोहल्ला सभाएं की, थाना कमेटी की मीटिंग की. महिलाओं ने इस बात को उठाया कि ये यमुना बाजार कश्मीरी गेट का इलाका जो है, यहाँ इतना नशे का अवैध धंधा होता है, आए दिन अपराध होते हैं और महिलाएं असुरक्षित हैं. 6 महीने बहुत प्रयास किए, कामयाबी नहीं मिली. तो 9 अगस्त क्रांति दिवस वाले दिन नशे से आजादी एक अभियान 9 अगस्त से 15 अगस्त का मैंने शुरू किया. मैं वहां 2.5 घंटे रही, सुबह 5 बजे से 7:30 बजे तक. और ये जो फुटेज दिखाया जा रहा है राहुल, ये सिर्फ 20 सेकंड का है. मैं तो 2.5 घंटे थी वहां पर, और ये 20 सेकंड का फुटेज मुझ पे हमला होने के तुरंत बाद का है. ये मेरा रिएक्शन है. वहां पर जब मैं अभियान चल रही थी, पुलिस की उपस्थिति में राहुल मेरे ऊपर पत्थर से हमला होता है. और हमलावर ओपी शर्मा जी जो बीजेपी के विधायक हैं, विधायक कई ओर से, पर वो दुकानें जो इनके परिवारों की चलती हैं, वहां से एक हमलावर दुकान के अंदर से ऊपर से पत्थर फेंकता है और
तुरंत पत्थर लगने के तुरंत बाद मैं दिल्ली पुलिस को दिखाती हूँ, आप क्या कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, आपके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ रहा है। जहां नहीं होते वहां अपराध है, जहां खड़े हैं मेरे साथ 8 पुलिस वाले उस अभियान में, नशे से आजादी अभियान में, आपके सामने हमला हो गया। But Alka, I have a question for you. I have a question what you're saying, Alka. You're saying that you got attacked and this footage is immediately after the attack. However, just look at the footage again. You are seen going into the shop, you're moving the cash counter around. Look at the response also from the supporter who's on your immediate left. He's pushing things around. Now, what allows you to go into someone's shop and get aggressive, start vandalizing that shop? Is that not wrong for a lawmaker to do, to act in this fashion, Alka? राहुल, मेरे पास 3 रास्ते थे। एक ये जिस मकसद से पत्थर फेंका गया और मेरा खून आया कि डराकर इस अभियान को रोक दिया जाए और खत्म कर दिया जाए। तीसरा रास्ता ये था कि एक स्टोन आया और बहुत सी ओपी शर्मा जी बीजेपी के विधायक की दुकानें और पत्थरों का मुझे इंतजार करना चाहिए था। जैसे ओपी शर्मा जी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अलका लांबा नशेड़ी है, वो नशा करके वहां आई थी। दूसरा आरोप लगाया मैं गुंडी हूं, हमला मेरे अकेले पर हुआ है, किसी को चोट नहीं आई और मैं ही गुंडी हो गई और मुझे कहा दोबारा आएंगी तो स्ट्रेचर पे जाएंगी। ये हमला होने के तुरंत बाद, क्योंकि हमलेवर को मैंने देखा था ऊपर खड़े हुए, पुलिस को तो पता ही नहीं था हमला हो चुका है। मैं तुरंत पुलिस को कहती हूँ चलिए इस दुकान के ऊपर वो शख्स है जिसने मुझ पे हमला किया। पुलिस मेरे पीछे नहीं आ रही है, उसमें देखिए। और मेरा गुस्सा था क्योंकि प्रोवोक किया गया, वो जो काउंटर पे शख्स है वो मुस्कुरा रहा था, उसको उसने मुझे एक कहा, मजा ले लिया और मुझे बिल्कुल, मैं कहती हूँ जब उसने इस तरह का कोई शब्द कहा तो प्रोवोक किया और मेरा गुस्सा था कि मैं ना इस अभियान को छोड़ूंगी ना हम दूसरे पत्रों का इंतजार करेंगे। आंख डाल के कहा यह अभियान 9 अगस्त क्रांति दिवस वाले दिन शुरू हुआ है, कल भी आऊंगी और आज भी मैं गई और कल भी जाऊंगी। और मैंने पुलिस को पलट कर कहा, अपने साथी को भी रोका कि ये पुलिस को करना है और पुलिस को मैं तब कहती हूँ मेरे निवेदन के बाद पुलिस अंदर जाके हमलावर को पकड़ती है। In Khidki extension, he too went because locals complained to him and started doing what cops are supposed to be doing. In this instance also you're saying this is an anti-drug campaign, but you are doing essentially what cops ought to be doing. Why are Aam Aadmi Party MLAs taking law into their own hands? Why don't you allow the cops to do their task? You go to them, you complain to them, you put pressure on them, get them to act. Why take law into your own hands, Alka? राहुल, बहुत फर्क है। मैं वहां नशा की पूड़ियां ढूंढने, नशा ढूंढने नहीं गई थी। मैं नशे के खिलाफ एक अभियान था, लोगों को जागरूक करना था, जो नशा छोड़ना चाहते हैं उन्हें नशा मुक्ति केंद्र तक पहुंचाना था। ये अभियान ये था। मैं उस दुकान में कोई नशा ढूंढने नहीं गई, कोई छापा नहीं मार रही हूं पुलिस को लेकर। पुलिस इस अभियान का हिस्सा थी जिसके खड़े होते मुझ पे पत्थर से हमला होता है और उस दुकान में मैं कोई नशा ढूंढने नहीं गई हूं। मैं उस हमलावर को जो इस दुकान में था, जिस दुकान से हमला हुआ, हमले के विदिन अ सेकंड हमला होते ही मैं तुरंत उस दुकान की तरफ बढ़ती हूँ और पुलिस को कहती हूँ हमला यहां से हुआ है। वो फुटेज तब की है जिसको ऐसे दिखाया जा रहा है कि जैसे मैं सुबह कोई नगर निगम का अभियान करने गई थी और मैं हर दुकान में घुस गई, हर दुकान से मैं ये भी कहा गया कि मैं वसूली करने गई, मैं नशे की हालत में थी, मैं गुंडी हूं, मैं स्ट्रेचर पे जाऊंगी। मैं राहुल साफ कर दूं, मुझे बस्सी साहब ने कहा है, पता नहीं मैंने सुना है कि ये सब आरोप झूठे हैं, बिना जांच के। कल हमला होता है पुलिस की उपस्थिति में, मेरी शिकायत के बाद कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती। मैं बस्सी साहब को कहूंगी, मुझे मालूम है ये दिल्ली की पुलिस नहीं, मोदी जी की पुलिस है। खाकी निक्कर से आपको, खाकी पैंट से निक्कर पे आ जाना चाहिए। मेरे खिलाफ हमला होता है सरेआम आपकी पुलिस की उपस्थिति में। वो पुलिस जानती है 8 लोग कि मैं उस दुकान में हमले से पहले गई या हमले के बाद। ये दिल्ली पुलिस खुद जानती है। हमलेवर को कहां से, किसकी दुकान से पकड़ा? Alka, you're making some claims. The cops are saying they don't have evidence to back these claims. They're also accusing you of trespassing, of entering without permission into a shop and getting physical. All of this is caught on camera and can be seen by everyone. What you're saying, there is no evidence for. How do people know what you're saying is correct, Alka? रिलीज किया है। आप जो कह रही हैं उसका सबूत तो है नहीं। मैं तो 2.5 घंटे थी, 5 बजे से 7:30, वो 2.5 घंटे का फुटेज कहाँ है? ये सिर्फ 20 सेकंड का फुटेज निकाल कर लाया गया और वो तब का है जब मुझ पर हमला हो गया। मेरे बालों में पूरा खून और बारिश बहुत तेज थी, खून और पानी में वो मेरा भीगा हुआ था और मेरे हाथ में रुमाल है। फुटेज देखिए, मेरे हाथ में रुमाल है, वो रुमाल खून से भरा है जो अभी पुलिस के पास है। और पुलिस साक्षी है, जो खड़े थे 8 पुलिस वाले, वो भी एकदम जो सटपटा गए कि ये हमारे होते हुए क्या हो गया है। और बिल्कुल उनकी जवाबदेही बन रही थी वहां पर। Okay, what happens next, Alka? Hello. You've got a claim, the cops are countering that claim, the BJP is accusing you, there's CCTV footage. What happens next? नेक्स्ट यही है,
राहुल, ये अभियान से बहुत उम्मीदें उन लोगों की, युवाओं की जो नशे में वहां पर 2-2.5 हजार लोग बैठे हैं। स्थानीय लोगों को बहुत उम्मीद है, महिलाएं अपने आप को उम्मीद कर रही है सुरक्षित होगी। ये अभियान मैं नहीं रोकूंगी। आज अगर बस्सी साहब मुझे मोदी जी की पुलिस तिहाड़ भेज देगी तो भी मेरे वॉलंटियर 15 अगस्त तक की जिद और हमारी शपथ है कि हम 9 अगस्त क्रांति दिवस से 15 अगस्त तक का नशा मुक्ति अभियान जो है, जागरूक करके लोगों को नशा मुक्ति केंद्रों तक भेजने का, ये अभियान राहुल नहीं रुकेगा। और मैं इस अभियान से ध्यान भटकने भी नहीं दूंगी, क्योंकि जिस तरीके से चाहे वो महिला सुरक्षा के ऊपर एक दिन का अधिवेशन का ध्यान भटकाना हो, चाहे भ्रष्टाचार की लड़ाई और अब नशे के खिलाफ भी, जो वहां लोग रहते हैं राहुल, उनसे जाकर पूछिए वो कितने जो है इस अपराध और नशे की वजह से डरे सहमे और आए दिन अपराध होते हैं। सरेआम सड़कों पर आप प्राचीन हनुमान मंदिर, यमुना बाजार हो, कनॉट प्लेस हो, निजामुद्दीन हो, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, ISBT बस अड्डा हो, नशे में अब बच्चे आपको मिल जाएंगे। Okay, I'm going to leave it over there. Alka Lamba for joining us in the newsroom tonight. Thank you.